very good afternoon to one and all present here. Today we have gathered here to witness a session on achieving problem solution fit and product market fit. And for this session we have Professor Himanshi with us, who is going to highlight the every minute details on the topic. But before that, I would like to welcome the director sir on the session. We warmly welcome you, sir. So now, without further ado, I would like to request the key resource person, Professor Himanshi, to please come over the desk and share some words, please. Thank you so much. First of all, good afternoon to all of you. I would like to thank the director sir for this opportunity, and also thank Sagar sir, and welcome all the students here. Okay. Today's my topic is product solution fit and market solution fit. Okay. Let us start with the roadmap of the presentation. Firstly, we will discuss the origin of these models. What is the origin? Means the starting point of these models, and then we will discuss the detail of these models. Okay, the meaning, importance, and how to achieve these problem solution fit or product market fit. And after that, with the help of a practical example, live examples, we will get to analyze that how these models benefit the businesses, benefit various kind of businesses. You know about the startups? Yes, ma'am. Right? What is startup? That That is basically the new company or the new product, right, of the existing company. Yeah. Many of the startups may fail due to not following these two models. Many of the models. 42% chances are there of their survival if they not follow these two models. That is, if they not follow the problem solution fit model or the market based model, that is product market fit model. Okay, let us start with the origin of these things. The customer development model is the basic origin of these things. Okay, that is invented by Steve Blank. Okay, according to this model, the customer development is a framework that is used to determine whether or not a product will fulfill the needs of the customer or not. Okay, we have to analyze both the product and the customer. Okay, we have to make a link between them so that customer can fulfill the needs with the help of the product. Okay, like for example, iPhone. Yeah, what is the main key point of building the iPhone? That is कैमरा है। कस्टमर को क्या करना पड़ता था? कैमरा ही खरीदना पड़ता था और मोबाइल फोन भी खरीदना पड़ता था। लेकिन अब क्या हो गया? You have to purchase the iPhone. That's it. Yes. Yeah. You don't have to purchase another camera, digital camera, so that need fulfill हो सके, है ना? तो इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है किसी भी बिजनेस की कि वो कस्टमर का जो नीड्स हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उसका सोल्यूशन दे दे। तो बेसिकली ये मॉडल इसी पर बेस्ड है, राइट? इट इज अ पार्ट ऑफ द लीन स्टार्टअप कांसेप्ट। व्हाट इज लीन स्टार्टअप कांसेप्ट? इट इज अ मेथड यूज्ड टू फाउंड अ न्यू कंपनी और अ न्यू प्रोडक्ट ऑफ द एक्जिस्टिंग कंपनी, राइट? सो स्टार्टअप्स के लिए सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर डेवलपमेंट मॉडल को क्रिएट करें। नेक्स्ट प्लीज। Now, this is the process of customer development. The first one is customer development. The second one is customer validation, customer creation, and then at last company building. Okay? कोई भी कंपनी तभी बिल्ड होगी अगर वो कस्टमर वैलिडेशन भी करे, क्रिएशन भी करे, डेवलपमेंट भी करे। ओके? वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज कस्टमर डेवलपमेंट मीन्स टू बिल्ड अ कस्टमर रिलेटेड प्रोडक्ट। ओके? To build a one or more business model so that the customer fulfill their need, right? It is basically based on the assumptions or the hypothesis. कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट होगा तो पहले assumption और hypothesis पर बेस्ड होगा। लाइक हमें assume करना पड़ेगा कि शायद इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये होगा, इसलिए हमें ये प्रोडक्ट बनाना चाहिए, है ना? और उसके बाद कंपनी बिल्डिंग, जब ये पता लग जाए कि हाँ प्रोडक्ट बन गया, प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर रहे हैं, और उसके बाद सेल प्रमोशन कर ली, एट लास्ट हमारी कंपनी बिल्डिंग होगी। मतलब हमारा जो रिसोर्सेज हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम अपने बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपेंड कर पाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम सॉल्यूशन फेज।
Here you can see the diagram. Is it visible to you? The problem solution bit is related to the formation of the product. Here is the formation of the product, right? Means you have to form such kind of product that solves the customer problems. Okay? Meaning the product is. उसके बाद why we have to achieve this? Why it is so important to achieve this? Okay, without this, is the business survival is possible or not? No. Okay. Basically, हमारा क्या आंसर होगा? नहीं होगा, right? ये important इसलिए है because without it, you're essentially just guessing that your idea is going to work. अगर हम कस्टमर बेस्ड प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे तो हम जस्ट एक गेस कर रहे हैं कि शायद ये प्रोडक्ट चल जाए, ठीक है, और कुछ नहीं कर रहे. प्रैक्टिकलिटी की बात नहीं है, ये जस्ट इमेजिनरी रह जाएगा कि क्या पता, चलो बना के देख लेते हैं, उसके बाद देखी जाएगी, है ना. एक नई मिठाई बना के देख लेते हैं, देखते हैं कि कस्टमर खाएगा कि नहीं खाएगा, है ना. तो ये जस्ट गेस वर्क पर होगा और इसीलिए हमारा स्टार्टअप पे आ जाएगा, फेल हो जाएगा. ओके, सो we get a better understanding of our target market, then we get a better understanding of the customer task and pain points, what is the problem of the customer, and then get a better understanding of the existing solution कौन से हैं उस प्रॉब्लम पे. जैसे फॉर एग्जांपल माउस की मैंने एग्जांपल ली थी कि माउस कस्टमर वायर के बिना यूज करना ज़्यादा पसंद करेगा, तो उन्होंने क्या किया, वायरलेस बना दिया. या फिर किसी कंपनी ने सोचा कि चलो वायरलेस नहीं, हम इसका साइज छोटा कर देते हैं, है ना. तो ये प्रॉब्लम आ रही है कि इसका साइज में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए हम छोटा कर देते हैं. फिर ये जांचना कि छोटे माउस कौन सी कंपनी बना रही है, ये जांचना, ये भी हमें पता लग जाएगा. और उसके बाद बिल्ड अ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द रियल डाटा पर बेस्ड हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं. ओके, तो ये तो भी इंपॉर्टेंस क्यों इंपॉर्टेंट है. उसके बाद नेक्स्ट वन, हाउ टू अचीव इट, वेरी इंपॉर्टेंट. कि अचीव कैसे करें हम, कैसे हमें यह समझ लगेगा कि कस्टमर को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंटरव्यू लेना पड़ेगा, कस्टमर की प्रोफाइल बनानी पड़ेगी. सबसे पहले तो कस्टमर की प्रोफाइल बनाओ, टू डेवलप अ कस्टमर प्रोफाइल. नेक्स्ट वन, कंडक्ट कस्टमर इंटरव्यू. कस्टमर का इंटरव्यू, प्रोफाइल तो होगी, एक पेपर हो गया, है ना, जैसे आपका रिज्यूमे होता है. रिज्यूमे इज योर प्रोफाइल. आफ्टर दैट कंडक्ट द इंटरव्यू, ताकि हम उससे बातचीत करके जान सकें कि उसकी प्रॉब्लम क्या है. उसके बाद डेवलप अ सॉल्यूशन प्रोफाइल. उसके बाद सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, कस्टमर की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है. देन कंडक्ट कंफर्मेशन इंटरव्यू. ओके, कि कंफर्म करना, कस्टमर से दोबारा से इंटरव्यू करना, कंफर्म करना कि अगर मैं आपको ये चीज़ प्रोवाइड करूँ तो क्या आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी या नहीं. ठीक है. So there are basically 8 steps for this. First of all, who is just identify who is your customer. Real customer कौन है आपका. ठीक है, अगर आप टेक्निकल चीज़ों में माहिर हो तो टेक्निकल चीज़ों के लिए कस्टमर कितना होगा, है ना. आपका जितना भी IT सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, वो सारे आपके क्या हैं, कस्टमर्स हैं. उसके बाद इस कस्टमर को ऐसा नहीं है कि डेमोग्राफिक फीचर ही जानता है कि वो कहाँ रहता है ना, वो किस एज ग्रुप का है, उसकी फैमिली कैसी है, ये भी जानना कि उसकी सोसाइटी किस तरह. ठीक है, सोशियोग्राफिक मींस उसकी सोसाइटी का बेस क्या है. आफ्टर दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ द कस्टमर, वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार क्या होता है कि कस्टमर को पता ही नहीं होता कि उसकी प्रॉब्लम क्या है. कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर को पता ही नहीं होता कि उसकी प्रॉब्लम क्या है. तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है. टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम ऑफ कस्टमर, मेक assumption ऑफ द प्रॉब्लम. तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, मेक assumption ऑफ द प्रॉब्लम यू थिंक योर कस्टमर हैव एंड देन गो ऑन टू वैलिडेट दोज assumptions. In the best case scenario, you can provide measurable insight into how big the customer's problem is. Okay, to measure the customer problem, to find out the customer problem. Okay, after that, is the customer aware of the problem? Very important. क्या आपके कस्टमर को ये भी पता है कि ये उसकी प्रॉब्लम है ना. कई बार क्या होता है कि हमें प्रॉब्लम पता होती है ना, लेकिन हम ये मानते ही नहीं है कि वो हमारी प्रॉब्लम
उसका सॉल्यूशन भी हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ये नहीं मानते कि ये प्रॉब्लम है, ये हम क्या मानते हैं कि ये तो ऐसे ही चलेगा, है ना। जैसे हमारा इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम क्या करता है, जो भी उसमें ड्रॉबैक्स होते हैं उसको हम रेक्टिफाई नहीं कर पाते हैं, और हम ये मानते हैं कि हम इंडियंस हैं, हमको ऐसा फेस करना ही पड़ेगा, है ना। करप्शन है तो फेस करनी ही पड़ेगी। ओके, so customer should be aware of the problem and then what is your product or services, आपका प्रोडक्ट क्या है और सर्विसेज क्या है जो आप कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं, ये भी आइडेंटिफाई करना। उसके बाद व्हाट आर द अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, है ना, कि आपका प्रोडक्ट तो है लेकिन इसके अलावा कोई और मैचिंग प्रोडक्ट है जो सिमिलर हो, ये भी फाइंड आउट करना। ठीक है, आफ्टर दैट sorry previous so here we talk about the blue ocean or the red oceans. These are the two very important things. अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक है, ठीक है, मार्केट में, तो आप कौन से ओशन में हो, ब्लू ओशन में कि ग्रीन लाइट है ना। लेकिन अगर क्या है, हमारे प्रोडक्ट का और भी ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन की इंडस्ट्री में अगर आप एंटर होना चाहोगे, है ना, तो इस वक्त कंपटीशन क्या कह रहा है ना, हाई कंपटीशन इज देयर, सो दैट इज अ रेड ओशन। सो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके जो प्रॉब्लम है, जो आप सॉल्यूशन सोच रहे हो, प्रोडक्ट भी बना लिया, उसके सॉल्यूशन और भी हैं मार्केट में। जितने प्रॉब्लम्स, जितने सारी अल्टरनेटिव्स होंगे, उतनी ज़्यादा हमारा रेड ओशियन वाला एरिया होगा। ओके, आफ्टर What are considerations your customer have while choosing a solution? आपका कस्टमर क्या चीज़ को पॉइंट आउट करेगा प्रोडक्ट को चूज करने के टाइम पे, है ना। जैसे मैंने ये माउस कल ही खरीदा, है ना, तो माउस मेरा खराब हो गया था, तो मैंने क्या कहा पापा से कि हाँ मेरा माउस ले आओ। तो पापा ने मुझे बस ये मेरी बस यही कंसिडरेशन थी कि वो वायर वाला होना चाहिए, वायरलेस नहीं होना चाहिए। आई डोंट वांट टू परचेज अनदर ब्लूटूथ फॉर दैट, है ना। तो इसीलिए मैंने क्या किया, वायर वाला माउस खरीद लिया। सो ये क्या है, मेरी कंसिडरेशन क्या थी, बस एक पॉइंट में थी कि मैंने वायर वाला लेना है और कोई नहीं लेना, है ना। कौन सा कलर है, ये रेड लाइट है या फिर ब्लू लाइट छोड़ रहा है, कौन सा क्या कर रहा है, आई हैव टू डू नथिंग विद दैट। ठीक है, तो मैंने क्या कंसिडर किया, सिर्फ एक ही चीज, दैट इज इट शुड बी वायर, सिर्फ वायर। ओके, सो कंसिडरेशन, कस्टमर क्या कंसिडर करेगा ये भी जानना जरूरी है। अगर वो मोबाइल फोन खरीद रहा है, तो मोबाइल फोन खरीदने के वक्त वो क्या चाहता है, क्या चाहता है, आप क्या चाहते हो कि मोबाइल फोन दिखने में अच्छा हो, साइज अच्छा हो, है ना, कैमरा अच्छा हो उसका, उसकी जो मेमोरी है वो अच्छी हो, ये हो, है ना। तो ये क्या है, कंसिडरेशंस है जो एक कस्टमर को जरूरी होती है। उसके बाद डज योर प्रोडक्ट और सर्विसेज एक्चुअली सॉल्व द कस्टमर प्रॉब्लम, ये जांचना कि आपका प्रोडक्ट एक्चुअल में कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है या नहीं। यू हैव टू कंडक्ट अ सर्वे फॉर दैट, क्रिएट अ सैंपल, डिस्ट्रीब्यूट इन द प्रैक्टिकल मार्केट एंड चेक आउट कि ये एक्चुअल में आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। जैसे नैनो ने किया था ना, नैनो, यू नो नैनो कार, है ना, उसकी फीचर क्या थी, स्मॉल इन साइज और affordable. Yes, very important key point is affordable. Nano car is affordable for all middle class, lower middle class families. It is of 1 lakh rupees only, है ना। तो ये उनका क्या था, स्टार पॉइंट था, लेकिन उसका नेगेटिव पॉइंट क्या था, साइज। You can say size और सिर्फ लोअर क्लास के लिए that is the star of that, है ना। Look is not good and cheapest तो उसका स्टार पॉइंट है ना, ठीक है। उन्होंने मिडिल क्लास को पॉइंट आउट किया था, तो इसलिए उसका स्टार पॉइंट हो गया। और प्रॉब्लम क्या थी, नैनो के साथ जो चलेगी नहीं, ड्राइवर को प्रॉब्लम है, yes इंजन, द प्रॉब्लम इज इट्स इंजन। उसमें जो इंजन यूज किया था वो शायद मोटर बाइक्स के लिए यूज करते हैं या स्कूटर्स के लिए यूज करते हैं, तो उससे क्या हुआ, वो एनर्जी ज्यादा कंज्यूम कर रहा था, हीट अप हुआ और आग लग गई। ऐसा हुआ था नैनो कार के साथ जब सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे गुजरात में, तो नैनो कार में आग लग गई थी, है ना। उसका इंजन पीछे भी होता है ना, तो पीछे कार में आग लग गई थी।
किया विद द रेक्टिफिकेशन, है ना। उन्होंने बनाया तो सही, कार बनाई, फिर कैसे किया, ठीक है। उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम तो आ रही है अभी, तो फिर क्या किया, लर्न किया और उसके बाद फिर से बनाया उस कार। सो वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस। कई स्टार्टअप्स क्या करते हैं, यहाँ पर रुक जाते हैं, बिल्ड कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं, प्रॉब्लम आ गई है, अब तो हम डूबेंगे, तो खत्म। ये नहीं करना, साइकिल हमेशा मूविंग होना चाहिए, बिल्ड मेजर लर्न, बिल्ड मेजर लर्न, ओके। नेक्स्ट वन इज इट्स एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल एग्जांपल, है ना। स्पॉटिफाई, हैव यू हर्ड अबाउट दिस ऐप? स्पॉटिफाई, है ना, कईयों के मोबाइल में होते। स्पॉटिफाई ने क्या किया था, स्पॉटिफाई सॉल्व्स द म्यूजिक आर्टिस्ट प्रॉब्लम ऑफ गेटिंग देयर म्यूजिक piracy, है ना, heard by creating a streaming platform that makes it easy for the people to discover and to listen to the new music, है ना। प्रॉब्लम क्या आ रही थी, पायरेसी की प्रॉब्लम थी, आर्टिस्ट को ये प्रॉब्लम थी पायरेसी की। यू नो व्हाट इज पायरेसी? यू डोंट नो अबाउट दिस? मूवीज बनती हैं, म्यूजिक वीडियोस बनती हैं, उसकी पायरेसी मतलब कॉपी बनती है उसकी, है ना। उसको सीडी में क्या करते थे, सीडी जब चलती थी ना, अब तो सीरीज है नहीं, तो क्या करते थे, मूवीज में, है ना, थिएटर्स में जाके उसको रिकॉर्ड कर लेते थे, सीडी में स्टोर कर लेते थे, उसके बाद उसकी सीडी निकाली, है ना, कॉपी बेच दी उसकी, ओरिजिनल 500 की होगी और कॉपी उसकी 100 रुपये में या फिर 50 रुपये में बिकती थी। दैट इज काइंड ऑफ अ ब्लैक थिंग, ओके। सो वो प्रोहिबिटेड होती है इंडिया में, पायरेसी इज टोटली प्रोहिबिटेड। क्या होता था, आर्टिस्ट गाना गाता था लेकिन उसकी जो एल्बम होती थी वो बिकती नहीं थी, उससे आर्टिस्ट को लॉस होता है ना। उसकी कॉपी बनके पायरेसी क्रिएट होती थी और वो मार्केट में बेच देते थे। तो स्पॉटिफाई ने ये क्या किया, प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, पायरेसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। उसके बाद एट द सेम टाइम इट सॉल्व द म्यूजिक लिसनर प्रॉब्लम ऑफ हैविंग इट बाय एंटायर एल्बम। पूरी की पूरी एल्बम खरीदने की जरूरत नहीं है, कस्टमर को कहा कोई बात नहीं, हम आपको, आपने अगर एक गाना सुना तो एक सुनो, 2 सुने तो पूरी एल्बम खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। कस्टमर को भी सेटिस्फाई कर दिया और प्रोड्यूसर को भी सेटिस्फाई कर दिया। सेकंड वन, गूगल की एग्जांपल। गूगल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट बाय क्रिएटिंग अ सर्च इंजन दैट यूज एल्गोरिथम, ठीक है, टू रैंक वेबसाइट्स। कभी नोटिस किए कि गूगल में जब आप सर्च करते हैं ना, रैंकिंग आती है ना, साइट्स की, कि नीचे लिखा होता है ब्रैकेट में कि इतने व्यूज हैं इस साइट को, इतने व्यूज हैं, मतलब ये वैलिड है साइट, है ना। और जो नीचे होती है, जितना नीचे जाए जाओगे उतने व्यूज कम होंगे उस साइट के, राइट। सो रैंक उन्होंने इस तरह का एल्गोरिथम बनाया, मतलब रूल बनाया, जिससे क्या होता था कि साइट जो ज़्यादा पॉपुलर थी वो ऊपर आ जाती, ओके। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम गूगल ने सॉल्व की, सर्च इंजन, इसीलिए वो आज बेस्ट है, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट मार्केट फिट। मतलब हम क्या चेक करेंगे, फॉर्मेशन तो कर ली, प्रोडक्ट बना लिया, अब वैलिडिटी को चेक करनी है। तो वैलिड कैसे होगा, मार्केट में लेके जाएंगे प्रोडक्ट को, मार्केट के अकॉर्डिंग वो फिट है या नहीं, ठीक है। प्रोडक्ट बनाना बहुत ईजी है, बना भी लेते हैं कई स्टार्टअप्स, लेकिन उसको मार्केट में वैलिडिटी, मतलब वो लॉन्ग रन में मार्केट में चलेगा या नहीं, ये रेक्टिफाई करना, ये इसकी चेकिंग करना भी जरूरी है, ओके। What is the meaning of product market fit? Various startups focus only on solving problems and build a product, or they often confuse their own excitement for the solution to a problem. कई कंपनीज क्या होती है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, है ना, हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, इसलिए वो एक्साइटमेंट में आ जाती है, और इसी एक्साइटमेंट में वो भूल जाते हैं कि मार्केट की चीज़ है ना, कस्टमर भी है, मार्केट भी है, उसको भी तो फोकस करना है। तो दैट मे नॉट एग्जिस्ट इन द मार्केट एंड इफ द प्रोडक्ट डज नॉट फिट, अगर वो मार्केट में फिट नहीं होगा, इट टेंड्स टू फेल, डेफिनेटली वो स्टार्टअप क्या हो जाएगा, फेल होगा, ओके। कई इंडियन कंपनीज ऐसी हैं जो स्टार्टअप तो होती हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट लेके आए, लेकिन वो फेल हो जाती हैं, ठीक है। तो क्यों फेल हो जाती हैं, क्योंकि हमारी मार्केट क्या है, ज़्यादा फॉरेन प्रोडक्ट्स को लाइक करती है ना। फॉरेन प्रोडक्ट जैसे टेलीग्राम ऐप, यू नो, ठीक है, लेकिन आपको व्हाट्सएप ज़्यादा पता होगा, क्यों, क्योंकि व्हाट्सएप और टेलीग्राम हम कहते हैं कि सिमिलर है। देखो फीचर कितने अच्छे हैं टेलीग्राम के, टेलीग्राम में कोई भी इंफॉर्मेशन हो, जैसे आपने कोई ग्रुप
टेलीग्राम वाले से सॉल्व किया है, कोशिश की है, लेकिन व्हाट्सएप को अभी तक वो फीड नहीं कर पाया, ठीक है। सो दिस इज द प्रॉब्लम, ओके। दैट इज द प्रोडक्ट मार्केट फिट, मतलब मार्केट के अकॉर्डिंग, कस्टमर के अकॉर्डिंग फिट होना भी जरूरी है। प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ली, अब क्या, व्हाट नेक्स्ट। वैसे देखा जाए तो आज तक टेलीग्राम की कोई भी सब्स्टिट्यूट मुझे नहीं लगता कोई आया है, टेलीग्राम का सब्स्टिट्यूट नहीं है कोई, ठीक है। सो मार्केट फिट क्या होता है? प्रोडक्ट मार्केट फिट मींस पुटिंग योरसेल्फ इन द राइट मार्केट विद द प्रोडक्ट और सर्विसेज। मार्केट, राइट मार्केट क्या है, राइट प्रोडक्ट क्या है, इसको मैच करना। अपना प्रोडक्ट तो राइट है, अपनी मार्केट भी राइट चूज करनी, ओके। सो प्रोडक्ट मार्केट फिट describe how well your product meet the demand of a viable market. Next one, why it is important? Some experts suggest that number one reason startup fail is that they don't establish market fit exercise, है ना? And 42% CEOs of failed startup consider this reason right. वो मानते हैं कि मार्केट फिट को हमने कंसीडर नहीं किया था, इसीलिए हमारा प्रोडक्ट और स्टार्टअप क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट व्यू है, विदाउट इट यू विल नॉट बी श्योर वेदर योर प्रोडक्ट और सॉल्व द प्रॉब्लम और नॉट, ठीक है। वेदर योर प्रोडक्ट सॉल्व द ह्यूज मार्केट प्रॉब्लम और नॉट। कस्टमर की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, मार्केट की प्रॉब्लम सॉल्व की आपने, तो ये चेक हो जाता है। उसके बाद यू डोंट वांट टू कीप इन्वेस्टिंग मनी, टाइम, एफर्ट्स ऑन वेस्टफुल प्रोडक्ट, है ना। अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट को फिट नहीं है, यू स्टॉप इन्वेस्टिंग इन दैट, ओके। अगर मार्केट को फिट नहीं है, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई लेकिन मार्केट को फिट नहीं है, तो स्टॉप क्रिएटिंग वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स ऑन दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट, ओके। एंड आफ्टर दैट फाइंड अ प्रोडक्ट मार्केट फिट इज अ की टू अट्रैक्ट एनी इन्वेस्टमेंट। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है, यू हैव टू क्रिएट सच अ आइडिया दैट विल बी नॉट ओनली सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द कस्टमर बट आल्सो बीट द मार्केट, है ना। तो ये दोनों चीजें होनी चाहिए प्रोडक्ट में, तभी क्या होगा, आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट मार्केट फिट? देयर आर बेसिकली द टू कंपोनेंट, दैट इज वैल्यू हाइपोथेसिस एंड द ग्रोथ हाइपोथेसिस, है ना। वैसे तो आपके कंपोनेंट प्रोडक्ट मार्केट फिट के दो ही होते हैं, दैट इज प्रोडक्ट और मार्केट, है ना। प्रोडक्ट अच्छा हो और मार्केट अच्छी हो, है ना। लेकिन इसी को बेस रखते हुए ये दो हाइपोथेसिस, हमने दो असम्पशंस को क्रिएट किया, दैट इज वैल्यू हाइपोथेसिस एंड ग्रोथ हाइपोथेसिस। नेक्स्ट वन, वैल्यू हाइपोथेसिस और प्रपोजिशन, इट आउटलाइन्स व्हिच मेक्स योर प्रोडक्ट अट्रैक्टिव टू द कस्टमर। ये एक आउटलाइन है जिससे आपका कस्टमर क्या होगा, अट्रैक्ट होगा आपके प्रोडक्ट की तरफ। It is a short statement that describes the problem you want to solve and how you will do it. ये एक छोटी सी स्टेटमेंट होती है जिससे आप ये जज कर सकते हो कि क्या आपका कस्टमर जो है वो आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होगा या नहीं, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वन, ग्रोथ हाइपोथेसिस मींस you have to check the validity and sustainability of your market success over time. क्या विद द पैसेज ऑफ टाइम, लॉन्ग रन में आपका जो प्रोडक्ट है मार्केट को फिट होगा या नहीं, है ना। ये भी तो जानना जरूरी है ना। जैसे आईफोन है, आईफोन क्या कर रहा है, आईफोन हर साल में या फिर 6 महीने बाद एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देता है ना। क्यों करता है, क्यों करता है वो? डिमांड डिक्रीज ना हो, आपके प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो डिक्रीज ना हो, उसकी एक छवि बन गई है, एक ऐसी गुडविल बन गई है कि मार्केट में वो 6 महीने बाद या साल बाद एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आएगा जो कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा, है ना। उसकी एक छवि बन गई है, उसका एक प्लस पॉइंट है, उसी की वजह से उसका शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा अप होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा ग्रो करती है और वो लॉन्ग रन में सर्वाइव करता है। नोकिया का क्या था, नोकिया फोन्स, है ना, उसने मार्केट में एंटर किया, है ना, विद द ब्लास्ट कि एक फ़ोन आया, स्मार्टफोन, है ना। लेकिन बाद में क्या, सॉरी फ़ोन आया, नॉट स्मार्टफोन, है ना, फ़ोन आया जिससे आप यूज़ कर सकते हो और लैंडलाइन को रिप्लेस कर सकते हो, राइट है। लेकिन बाद में क्या हुआ, स्मार्टफोन्स आए और नोकिया को रिमूव कर दिया मार्केट से, क्योंकि उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया था, है ना। तो लॉन्ग रन
हमेशा रहेगा, है ना, एक लॉयल्टी हमेशा रहेगी। उसने रीलॉन्च करने की भी कोशिश की, लेकिन क्या हुआ, बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स ने उसको दबा दिया और लॉन्ग रन में वो फाइनली सर्वाइव नहीं कर पाया, राइट। सो ये प्रॉब्लम होती है, दैट इज अ ग्रोथ हाइपोथेसिस। ग्रोथ का भी असम्पशन लगाना बहुत जरूरी है और सही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हाउ टू फाइंड द प्रोडक्ट मार्केट फिट। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। पहले तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को आप आइडेंटिफाई कीजिए। फर्स्ट कंडक्ट मार्केट रिसर्च टू फाइंड अ गुड मार्केट that consists of the sufficient number of users, potential growth and customer acquisition. Basically we work on the market requirement document कि मार्केट में क्या क्या जरूरी है, ठीक है, उसका एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना। उसके बाद अंडरस्टैंड द कस्टमर नीड्स, कस्टमर नीड को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। आफ्टर दैट डिफाइन द प्रोडक्ट वैल्यू, आपके प्रोडक्ट की बिजनेस की क्या वैल्यू है ये भी आइडेंटिफाई करना। एंड आफ्टर दैट बिल्ड वैल्यू फर्स्ट, ठीक है। बिल्ड वैल्यू फर्स्ट मीन्स अपने प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी इसका असम्पशन लगाना कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते हो, आप अपने प्रोडक्ट की वैल्यू के बारे में क्या सोचते हो, ठीक है। तो दैट इज अ मिनिमम वैल्यू प्रोडक्ट, दैट इज MVP, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अपने प्रोडक्ट की वैल्यू आपके नजर में क्या है, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, ठीक है, कि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है कि मेरा प्रोडक्ट क्या है, हजारों में एक, लाखों में एक, करोड़ों में एक, असम्पशन लगा ली, ऐसा नहीं, ठीक है। प्रैक्टिकली आपकी वैल्यू क्या है उस प्रोडक्ट की अपनी बात, ठीक है, टू आइडेंटिफाई करना। आफ्टर दैट इलिटेट एंड अडैप्ट एज नेसेसरी, कीप वर्किंग टू इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटी एंड एनहांस योर प्रोडक्ट टू मीट देम। अपॉर्चुनिटीज को साइड बाय साइड आप फाइंड आउट कीजिए और अपने अपडेट कीजिए अपने आप को। नोकिया की तरह नहीं कि अपडेट नहीं किया, स्मार्टफोन आ गया तो क्या हो गया, कोई खास चीज नहीं है, उसको भी देखना, अपॉर्चुनिटीज को देखना, रेक्टिफाई करना, वही चीज बिल्ड देन मेजर एंड लर्न, ठीक है, बिल्ड मेजर लर्न। सो ये चीज को कॉन्टिन्यूटी में हमेशा रखना। नेक्स्ट वन इज हु इज रिस्पांसिबल फॉर दैट, वेरी इजी, कि कौन रिस्पांसिबल है इस चीज के लिए। सबसे पहले तो अगर आपकी नई कंपनी है तो कौन रिस्पांसिबल है, फाउंडर। अगर एग्जिस्टिंग कंपनी है तो कौन रिस्पांसिबल है, आपका एग्जीक्यूटिव लीडर, ठीक है। लीडर कौन है, जो एग्जीक्यूशन करता है, इम्प्लीमेंटेशन करता है, ठीक है। अगर प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम है आपकी तो वो इस चीज को देखेगी, ठीक है। दैट इज कंसिस्ट ऑफ वेरियस मार्केट रिसर्च, वैलिडेशन ऑफ आइडियाज चेक करना, उसके बाद डिलीवर करना अपने प्रोडक्ट्स को। ये सारी चीजें जब हो जाती हैं, स्वॉट एनालिसिस करना, स्वॉट, यू नो व्हाट इज स्वॉट, दैट इज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, ठीक है। अपने प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ को भी देखना, वीकनेस को भी देखना, अपॉर्चुनिटीज अपने प्रोडक्ट के आसपास कौन सी घूम रही है उसको एनालिसिस करना और अपने डर को पहचानना। प्रोडक्ट के लिए डर भी जरूरी है कि कौन सा डर है जो अपने प्रोडक्ट को क्या करेगा, ठीक है। और लास्ट में प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम जिसमें इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस होंगे जो ये एनालिसिस करेंगे कि टेक्निकली ये पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें। उसके बाद हाउ टू मेजर द प्रोडक्ट मार्केट फिट, उसकी मेजरमेंट कैसे होगी। सबसे पहले तो अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू को देखो, ठीक है। उसके बाद उसकी डिमांड को देखो कि नए प्रोडक्ट की डिमांड जो आप लॉन्च करने जा रहे हो उसकी डिमांड कहाँ जा रही है ना। उसके बाद मेजर इंक्रीज इन द प्रोडक्ट यूजेज, आपके प्रोडक्ट की यूजेज इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, ठीक है। उसके बाद हाई नेट प्रमोटर स्कोर्स मीन्स योर कस्टमर लॉयल्टीज, आपके प्रोडक्ट की कितनी कस्टमर लॉयल्टी है, आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट को छोड़कर कहीं और तो नहीं घूम रहा, ठीक है। आपका प्रोडक्ट वो परचेज कर रहा है, हमेशा वही प्रेफर करता है, वो कह रहा है कि आईफोन लूंगा तो आईफोन ही लूंगा और कोई मैंने किसी भी प्रोडक्ट को नहीं देखना। उसके बाद रिस्पॉन्सेज टू द कस्टमर सर्वे क्वेश्चंस, कि क्या, जैसे सर्वे कंडक्ट करना, कस्टमर को पूछना टाइम टू टाइम कि क्या आप अपने प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हैं, कभी आप डिसअपॉइंट तो नहीं होंगे, लॉन्ग रन में अपने प्रोडक्ट को कहाँ देखते हो, ठीक है। आपकी डिमांड हमारे लॉन्ग रन में फुलफिल कर पाएगा वो प्रोडक्ट या नहीं, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टर्म कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर रिटेंशन लर्निंग,
रिटेन करें आप कस्टमर को, ठीक है। नाउ ऑलमोस्ट द लास्ट वन, एग्जाम्पल फॉर बैड प्रोडक्ट मार्केट फिट, ठीक है। सबसे पहले हम उस चीज को देखते हैं कि अगर कंपनी क्या हो, बैड प्रोडक्ट मार्केट फिट, ठीक है, कि मार्केट को फिट नहीं करी तो क्या होगा। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल थी गूगल ग्लास। हैव यू हर्ड अबाउट दैट? गूगल ग्लासेस थे, जैसे आपकी स्पेक्स होती है ना, वैसे ग्लासेस उन्होंने लॉन्च किए थे, जो कि साइड पे बटन होता है, उसको क्लिक करते थे, स्क्रीन आती थी, जैसे आपने देखा होगा स्पाइडरमैन की मूवी में देखा होगा, है ना। अगर कोई एवेंजर्स देखता है तो स्पाइडरमैन की मूवी में वो ऐसे क्लिक करता है, उसकी कमांड देता है और उसको वो फॉलो करती है ना। तो क्या होता था, गूगल क्लासेस भी लॉन्च किए उन्होंने, ठीक है, लॉन्च किए, लेकिन वो गायब हो गए, और ऐसे गायब हुए कि आपको भी नहीं पता भी गूगल क्लासेस आई भी थे, ठीक है ना। सो वेयरिंग टेक्निक थी ये, एक स्मार्ट ग्लासेस है, ठीक है, जो लेंस का काम करते हैं, ठीक है, साइड बाय साइड वो कमांड्स को भी फॉलो करते हैं, जैसे स्मार्ट वॉचेस होती है वैसी स्मार्ट ग्लासेस, ओके। लेकिन कस्टमर ने क्या किया, 18 महीने से ज़्यादा वो प्रोडक्ट चला नहीं, ठीक है, कस्टमर ने उसको रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट किया? वाई? द कस्टमर वर कंफ्यूज अबाउट व्हाई एंड व्हेन दे वुड यूज द गूगल क्लास। उसको यही नहीं समझ आया कि उसको यूज क्या करना है, उसका कस्टमर को यूजेज क्या है उस चीज की, कब वो पहने, कब वो यूज करे, कुछ नहीं पता, ठीक है। प्राइवेसी कंसर्न भी थी इसमें, प्राइवेसी इसमें भंग हो रही थी, उसकी खत्म हो रही थी। एंड देन डिस्पाइट द फ्यूचरिस्टिक technological of the product, this failure provide that no viable market demand exists when it was launched। और इसीलिए फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट रहा ही नहीं है, ठीक है, इसने क्या किया, कस्टमर को डिसअपॉइंट कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं कि गुड मार्केट, ठीक है, गुड मार्केट फिट कौन सा प्रोडक्ट था? नेटफ्लिक्स, सबको पता है नेटफ्लिक्स है ना। नेटफ्लिक्स ने क्या किया था उस टाइम पे, जब डीवीडीज थे, डीवीडीज यू नो, जैसे डीवीडी, ठीक है, डीवीडीज थे, तो डीवीडीज को रेंट पे लेना पड़ता था, पर डे बेसिस पे रेंट पे लेना पड़ता था, रेंट देना पड़ता था। तो उन्होंने क्या किया कि सब्सक्रिप्शन कर देते हैं, मींस 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन दिस अमाउंट विद डिस्काउंट, है ना। तो उन्होंने ये ऐसे लॉन्च कर दिया डीवीडीज को, लेकिन बाद में विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी चेंज हुई, डीवीडीज फेल हो गई, और उसके बाद उसने किस चीज़ की फॉर्मेशन ले ली, स्मार्टफोन्स, इंटरनेट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। इसलिए उन्होंने उसको मॉडिफाई किया। नेटफ्लिक्स अडेप्ट टू व्हाट डोमिनेटेड द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, सो दे आर कंसिस्टेंटली चेज द प्रोडक्ट मार्केट फिट। वो आज अभी इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि वो हमेशा चेज करते हैं इस चीज़ को, प्रोडक्ट मार्केट फिट। क्लियर आउट हुआ? यस। Thank you so much. This is all about my presentation. I hope you will enjoy that. Thank you.